Hi everyone. So this video is going to be a little unique. Most of the times we and others keep talking about the positive aspects of SEBI कि job profile बहुत अच्छा है, salary बहुत अच्छी है, which is indeed true. But as everything is two sides and that is the case with SEBI, तो SEBI के केस में भी कुछ ऐसी चीजें हैं which you might not like, which you might hate. Now the intent is not to portray SEBI as a bad organization. It's a very good organization. It is a dream job for many in India. बट एज आई सेड एवरीथिंग हैज टू साइड्स, तो कुछ ऐसी चीजें हैं सेबी में भी जो शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं है लेकिन बाकी लोगों को शायद वो पसंद हो. एंड नाइदर इज द इंटेंट टू मेक यू अफ्रेड ऑफ ज्वाइनिंग सेबी. ठीक है, अब हर बंदे का अलग इंटरेस्ट होता है. आप ये चीजें सुन लीजिए, अगर आपको अच्छी लगती हैं, आपको इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, देन यू आर मोस्ट वेलकम. बट काफी लोगों को शायद इन चीजों के बारे में पता नहीं है, तो वो ये जरूर सुन लें. कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट शायद लाइफ में छोटी छोटी चीजें कभी आपको इंपैक्ट कर सकती हैं. सो द फर्स्ट थिंग विच you might not like, ठीक है, maybe you might hate is a very exaggerated thing. You might not like while you're working at SEBI is that trading in stocks is not allowed. Trading in stocks is not allowed. So while you can invest through mutual funds or you can do long-term investing, but you cannot do short-term trading. The reason is that many a times you might be in excess of sensitive information. And if you can use that sensitive information to make some money in trading, so that would be kind of insider trading, which SEBI is against. So if its officers start doing it, that would be very bad on part of SEBI. So trading allowed nahi hai, and that's the irony that you might be working in markets while you are at SEBI, but you are not allowed to trade in them. Second चीज जो शायद काफी लोगों को अच्छी नहीं लग सकती है is about the bureaucracy. ठीक है, अब देखिए, while you're working in an organization which is not exactly government but has some kind of flavor of government, so यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको कोई प्रपोजल बनाना है, कोई एनालिसिस करना है, you will make a note, you will make a research document and it will go through various levels before it is finally approved. तो काफी बार इतना टाइम लग जाता है that you might forget that what you are actually working on, or it might frustrate you, or it might make you feel that you are not having that kind of freedom which is available in the private sector. तो ये है सेबी में, ठीक है, और इसका कारण भी है. देखिए, सेबी इज अ रेगुलेटर. इट कैनॉट अप्रूव थिंग्स एज सच. इट हैज टू टेक केयर ऑफ एवरी स्मॉल एस्पेक्ट बिफोर एनीथिंग इज अप्रूव्ड. अब सोचो, सेबी ने एक रेगुलेशन बना दी और हफ्ते बाद पता लगा कि यार इस रेगुलेशन में तो ये कमी रह गई, इसमें तो ये यूज केस मिस हो गया. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट for SEBI as an organization that whatever they vet is thoroughly researched on, thoroughly discussed, thoroughly analyzed, then only they approve it. So at times you feel that it is like a bureaucracy, but that is how SEBI works. You need to adapt to it. हाँ, काफी लोगों को इसमें फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, एक लॉस ऑफ फ्रीडम लग सकता है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर में आजकल काफी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, काफी ज्यादा फास्ट चीजें डिसाइड की जाती हैं. उनका तो यही मानना है दैट इफ यू वांट टू फेल फास्ट. ठीक है, बट यहां पे ऐसा नहीं है. हेयर यू कैन नॉट फेल बिकॉज यू आर द रेगुलेटर ऑफ द कंट्री. और तीसरी चीज जो आई थिंक द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट है जो लोग मुंबई में काम करते हैं इज द वर्किंग इन मुंबई. ठीक है, अब मुंबई इज द सिटी ऑफ ड्रीम्स. मेनी पीपल go there, make big names for themselves. So Mumbai in itself is a very good city, but there are some problems in Mumbai for somebody who is not able to adapt to it. सबसे पहले traveling. So I know few people who are working in SEBI have to travel 1.5 hours every day single side. अब सोचो पूरे दिन में 3 घंटे ट्रैवल करना, it's very exhausting. ठीक है, और अगर आप कार वगैरह में जाते हो तो शेयरिंग बेसिस पे जाना पड़ेगा. You cannot afford so much of petrol कि यार पता लगा पेट्रोल में ही 25-30 हजार आपका उड़ गया. तो ये कुछ है ड्रॉबैक्स फॉर अ सिटी लाइक मुंबई. फिर मुंबई में चीजें बहुत कॉस्टली हैं. इफ यू वांट टू टेक अ अपार्टमेंट ऑन रेंट फॉर योर फैमिली एंड योरसेल्फ, 60-70 हजार से कुछ कम नहीं मिलने वाला, इवन इफ यू गो टू सम फार अवे प्लेसेस. फिर सारी चीजें महंगी हैं. बाहर से खाना ऑर्डर करोगे वो महंगा है. जो घर में काम करते हैं, सफाई करते हैं, खाना बनाते हैं, उनकी कॉस्ट भी as compared to other cities is very high. So that is another drawback. और आई थिंक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सेबी के अभी तक, ठीक है, फ्यूचर में दे आर प्लानिंग टू ओपन लार्जर ऑफिसेज इन स्टेट कैपिटल्स. अभी तक
द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज इन मुंबई। तो काफी लोग जो नॉर्थ से हैं, साउथ से हैं, दे वांट टू गो टू देयर होम स्टेट और नियर टू देयर होम स्टेट। दिल्ली वाला बंदा बोलेगा यार मुझे लखनऊ दे दो, शिमला दे दो, चंडीगढ़ दे दो, ठीक है, बट दे हैव टू बी इन मुंबई। बैंगलोर वाला बंदा बोलेगा यार मुझे बैंगलोर दे दो, चेन्नई दे दो, हैदराबाद दे दो, बट दे हैव टू बी इन मुंबई। सो पोस्टिंग अभी एक प्रॉब्लम है दैट एज ऑफ नाउ वंस यू आर इन सेबी यू हैव टू बी इन सेबी फॉर योर एंटायर लाइफ, बट सेबी इज वर्किंग ऑन इट। अभी चेयरमैन का आपने सुना होगा काफी देर पहले एक स्टेटमेंट आया था दैट सेबी इज प्लानिंग टू ओपन ऑफिसेज अक्रॉस इंडिया ऑन अ लार्जर स्ट्रेंथ बेसिस। ऑफिसेज अभी भी हैं काफी कैपिटल्स में, बट स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं सो दैट सेबी इज एज क्लोजर टू द इन्वेस्टर एज इन्वेस्टर वांट्स, ताकि इन्वेस्टर के ग्रीवेंसेस फिजिकल ऑफिस के थ्रू सेटल हो जाए। तो शायद ये वाली प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी, बट अभी इमीडिएट इसका सोल्यूशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 3 चीजें हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। किसी के लिए हो सकता है, मैं यही बोल रहा हूं, किसी को अगर मुंबई में सारी जिंदगी नहीं रहना है, सो ही माइट थिंक ट्वाइस बिफोर अप्लाइंग फॉर दिस एग्जाम, फॉर अपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। बट बात वो ये, हमारे इंडिया में आई थिंक ये चीजें कम मायने रखती हैं। टू गेट अ जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन लाइक सेबी इज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। तो आप इसको इग्नोर करें। मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसको इग्नोर करें। शहर का क्या है, ट्रैवल का क्या है भाई, सचिन तेंदुलकर भी सारी जिंदगी ट्रैवल ही करता रहता था जब मैचेस खेलता था। सो दैट इज पार्ट ऑफ योर प्रोफाइल, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। बट अगर नहीं कर सकते, ठीक है, देन गो फॉर समथिंग एल्स व्हिच सूट्स यू। बट ये चीजें आप प्लीज ध्यान में रखना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं बट इट माइट इंपैक्ट यू। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। बाकी अगर आप सेबी के लिए और जानना चाहते हैं, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड दिस गाइड बुक। दिस इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट। इसमें आपको सेबी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको सेबी की सैलरी, प्रमोशंस, हायरार्की, ऑफिसेज, डिपार्टमेंट, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और 3 चीजें जो बहुत जरूरी हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिकोडेड सिलेबस इन डिटेल, एंड थर्ड वन द रिकमेंडेड सोर्सेज। अगर आप फ्री रिसोर्सेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो फ्री रिसोर्सेज क्या हो सकती हैं, वो इस गाइड बुक में आपको पता लग जाएगा। And you can download this at zero cost. The link is given in the description of this video. इसको download कीजिए at zero cost and start reading it. It would be a great value add for your preparation. So I'll take your leave now. Thank you. Jai Hind. Have a nice day.